علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن کریم سنا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ رہتا تھا ہمیشہ سے کہ محلے والے اپنے امام کو جو کچھ بھی چاہتے تھے پیش کر دیتے تھے، لیکن اس بار حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے یا حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے مسجد میں صرف 5 لوگ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور انہی 5 لوگوں کے لیے حکومت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ 5 لوگ ہی تراویح پڑھیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ مشورہ کیا کہ اس بار تراویح میں وہی 5 لوگ قرآن سنیں گے کہ جو امام کو اتنا نذرانہ دیں گے یا اتنے پیسے دیں گے، یعنی ایک رقم متعین کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اتنے پیسے دے گا وہی قرآن سنے گا۔ اب میرا سوال یہ کہ ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے یہ عمل کرنا یا ان لوگوں کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ یہ ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کو آپ بیان فرما دیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز جو رمضان المقدس میں پڑھی جاتی ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اور نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور طلب ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو، اس لیے میں تمہاری طرف تیسرے دن نکل کر نہیں آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے رمضان میں قیام کیا، تو یہاں قیام سے مراد نماز تراویح اور دوسری نفلی عبادتیں ہیں، تو جس نے رمضان میں قیام کیا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ترغیب دی سرکار نے نماز تراویح پڑھنے کی۔ سرکار کے زمانہ حیات میں لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھتے رہے، یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، اول دور خلافت میں بھی یہی رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کی اقتداء میں ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم ان سب لوگوں کو نماز تراویح پڑھاؤ، تو سب لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے جمع فرما دیا اور لوگ ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے لگے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی، جب سے نماز تراویح امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اس سلسلے میں نماز تراویح کے تعلق سے کئی مسئلے جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بالاجماع یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جماعت سے نماز تراویح کو پڑھنا یہ سنت مؤکدہ
अलल किफाया है। दूसरी बात ये कि तरावी की 20 रखते हैं, 10 सलाम से पढ़े, हर रकात पर सलाम, हर 2 रकात पर सलाम फेरे। और अगर किसी ने 20वीं रकात पढ़कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर हर रकात पर कायदा करता रहा तो हो जाएगी, मगर कराहत के साथ होगी। और अगर कायदा नहीं किया था तो सब सारी 20 की 20 रखते हैं, 2 रकत के कायम मकाम होंगी। तरावी की नमाज में एक बार कुरान मजीद का खत्म करना सुन्नत मुअक्किदा है और 2 मरतबा अफजल है, और 2 मरतबा फजीलत रखता है और 3 मरतबा अफजल है। लोगों की सुस्ती की वजह से खत्म को तर्क ना करे। एक दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि तरावी की जमात सुन्नत मुअक्किदा किफाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे, और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो लोग गुनाहगार नहीं। मगर जो शख्स मुक्तदा हो कि उसके होने से जमात बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जाएंगे, उसे बिला उज़्र जमात छोड़ने की इजाजत नहीं है। तरावी मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना अफजल है। अगर घर में जमात से पढ़ी तो जमात के तर्क का गुनाह ना हुआ, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा जो मस्जिद में नमाज पढ़ने का था। दूसरी बात यह है कि अगर आलिम हाफिज भी हो तो अफजल यह है कि खुद पढ़े, दूसरे की इक्तिदा ना करे। और अगर इमाम गलत पढ़ता हो तो मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर किसी दूसरी मस्जिद में जाने में हरज नहीं है। आजकल एक चीज ये भी देखी गई कि लोग उन लोगों को नमाज तरावी पढ़ने के लिए मुतय्यन कर रहे हैं कि जिनकी आवाजें अच्छी हैं, अगरचे उनसे कुरान अच्छा पढ़ा जा रहा हो या नहीं पढ़ा जा रहा हो, लेकिन शरई नुक्ते निगाह से बेहतर यह है कि उन लोगों को इमाम मुतय्यन किया जाए और उन लोगों को इमाम बनाया जाए, चाहे नमाज पंजगाना का हो या नमाज तरावी का हो, कि जो अच्छा कुरान करीम पढ़ते हों। अब रही ये बात कि आजकल अक्सर जगह ये रिवाज है कि हाफिज को उजरत देकर नमाज तरावी पढ़वाते हैं। शरई नुक्ता निगाह से इसका हुक्म क्या है? तो शरअन आजकल जो ये रिवाज है इसका शरई तौर पर हुक्म यह है कि नमाज तरावी में जो कुरान करीम खत्म किया जाता है उस पर उजरत तय करना ये नाजायज है। देने वाला लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं। उजरत सिर्फ यही नहीं कि पहले से मुकर्रर कर लें कि ये लेंगे या ये देंगे, बल्कि अगर ये मालूम है कि यहाँ कुछ मिलता है, अगरचे उससे तय ना हुआ हो तो ये भी नाजायज है। अल मारूफ कल मशरूत की जुमरे में आता है। हाँ, अगर कह दे कि कुछ नहीं दूंगा या लेने वाला कह दे कि कुछ नहीं दूंगा, फिर पढ़े और फिर लोग अगर हाफिज की खिदमत करें तो इसमें कोई हरज नहीं है। क्या सरीहु युफव्विकु दलालता, सरी जो है वो दलालत पर फौकियत रखता है। नमाज तरावी की उजरत जो है वो असल में ताआत पर उजरत लेना जायज नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाया है कि वो ताआत के जिनके बगैर दीन में हरज होता हो उन ताआत पर इजारा जायज है, यानी उन ताआत की उजरत लेना जायज है, मजदूरी लेना जायज है। और जिन ताआत से दीन में कोई हरज ना होता हो उनके छोड़ने से उन ताआत पर इजारा जायज नहीं है। इसीलिए कुरान करीम की तिलावत की उजरत तय करना ये जायज नहीं है, बल्कि ये हराम है। कुरान करीम की तिलावत की उजरत चाहे नमाज में कुरान की तिलावत यानी नमाज तरावी में कुरान की तिलावत की उजरत तय करे या कब्र पर कुरान करीम पढ़ने की उजरत तय करे, दोनों सूरतें नाजायज और हराम की है। ऐसे ही नात खानी की उजरत तय करना भी नाजायज और हराम है। नात खानी की उजरत तय करना यह भी नाजायज है। बहुत से शायर लोग कहते हैं भाई पहले से पैसे डलवाओ, अगर तुमने 40,000 30,000 डलवा दिए तो ठीक है, नात शरीफ पढ़ने आ रहे हैं, नहीं डलवाए तो नहीं आ रहे हैं। जी जी जी। तो नात खानी की उजरत को भी आला हजरत ने हराम लिखा है। चूंकि नमाज तरावी एक ऐसी इबादत है कि अगर चंद लोग कर लें तो सब बरजिम्मा हो जाते हैं, इसलिए जो है इस पर उजरत के तय करने का कोई जवाब नहीं निकलता है। अलबत्ता अब रही ये बात कि आज हालात की नासाजगारी की वजह से हुकूमती
दबाव की पोजीशन ये है कि 4 लोग नमाज पढ़े मस्जिद में, तो अगर हालात ऐसे हैं तो 4 लोगों का मस्जिद में नमाज पढ़ने में तो कोई हरज नहीं, लेकिन उन 4 लोगों के तायुन का इख्तियार जो है वो अहले मोहल्ला को है कि अहले मोहल्ला जिन 4 लोगों को मुतय्यन कर दें वो 4 लोग नमाज पढ़ें। इसमें इमाम का कोई अमल दखल नहीं है, या इसमें गरीबी और मालदारी का भी कोई दखल नहीं है कि मालदार लोग नमाज पढ़ें, गरीब लोग नमाज न पढ़ें। बल्कि इस सिलसिले में सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि मस्जिद में जो 4 या 5 लोग पहले आ जाएं वो नमाज पढ़ लें, जिस वक्त की भी हो, और जब 6ठा आदमी आए तो उससे कह दिया जाए कि भाई 5 पूरे हो चुके हैं। या फिर इस सिलसिले में यह है कि अगर अहले मोहल्ला ये तय कर लें कि भाई 5 लोग फुला पढ़ेंगे, और अहले मोहल्ला का अगर उन सब पर इत्तेफाक हो जाए कि भाई यही 5 लोग जो मस्जिद के करीब रहते हैं ये मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन ये कहना कि साहब जो इमाम साहब के पैसे देगा नमाज तरावी के वही नमाज तरावी पढ़ने आएगा, इस तरह की शर्त लगाना ठीक नहीं है। और इस्लाम में इस तरह की शर्तें जो है गलत हैं, ये शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। बल्कि नमाज तरावी हालात के दबाव में जो लोग भी पढ़े, इमाम साहब को जो भी नवाजना चाहे वो नमाज तरावी पढ़े न पढ़े वो नवाज सकता है, नहीं नवाजना चाहे तो किसी पर कोई दबाव या किसी पर कोई ज्यादती नहीं है। इस सिलसिले में शरीयत ने बिल्कुल इख्तियार दिया है कि आदमी चाहे नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद में इमाम की खिदमत जो भी उसकी हस्ब हैसियत कर सकता है करे, और अगर नहीं कर रहा है तो कोई जोर या जबरदस्ती से उससे खिदमत कराना जायज नहीं है। बल्कि उस पर जो है दबाव डालकर पैसे लेना, इमाम की मतलब यह है कि उजरत के या मतलब नमाज तरावी के सिलसिले में दबाव डालकर उससे पैसे लेना, ये भी जायज नहीं है, बल्कि ये ज्यादती है, जुल्म है। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। बल्कि अगर वो दे तो अपनी खुशी से दे, नहीं दे तो इसमें उसके लिए कोई हरज नहीं है। रब कदीर अपनी बारगाह में हमारी इस बात को कबूल फरमाए और परवरदिगार हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।